How does it feel to be amongst the ITNs? एक हफ्ते के लिए तो you feel very special. In school, we were always the toppers. When we go there, it's like someone else is taking my position. Someone still gets a 0. Someone still gets a 100. वहाँ पे भी जीरो मिलते हैं। हाँ. I thought स्कूल में ही होता है यार। I remember myself crying in my room. Why can't I do this? उनका बेटा तो कितना अच्छा कर रहा है, हमारा बच्चा तो कर ही ले। So 7 runs। no, 3 runs. तीन ही मिलेगा, मुझे 7 नहीं मिलेगा। No. ठीक है, मतलब जीरो काउंट हो गया था। 3, 2, 1. I'm a better bowler. I'm a better bowler than batsman. UPSC की तैयारी करके पास करके मेरी बेटी IAS ऑफिसर है। वो तो अभी भी चाहते हैं. We are expected to win each and every game that we play, and the fact is we know. So my name is Yogita and I am from Haryana and I currently study in IIT Roorkee Computer Science Engineering. My name is Ahmed Shayan. I'm a student at IIT Bombay, currently pursuing mechanical engineering. मतलब मैं मुंबई पहली बार आई तो मेरी पहली फ्लाइट थी तो मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है. ये आपको पता है कौन है सेलिब्रिटी? क्या आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सेलिब्रिटी का तो अभी नहीं पता चला है मुझे. टुडे वी आर शूटिंग विद MS धोनी. किसी के साथ की है? वाह, कूल रहना, हर सिचुएशन को अच्छे से कैसे कूल रह के हैंडल करता है वो मतलब मेरे को अच्छा लगता है. I think my friends would be in a state of disbelief and awe. They would be utterly shocked and perhaps even jealous. It's very nice sitting with two IITians. तो मेरा सवाल ये है, how does it feel to be amongst the IITians, spending time with all of them and studying over there? What is the feeling? So personally, sir, in my opinion, एक हफ्ते के लिए तो you feel very special. You feel like you're on top of the world. But eventually you realize कि यार पढ़ तो रहे हैं engineering, तो ठीक है. वो जो eventually जो हम लोग on top of the moon होते हैं cloud 9 पे, वो eventually fade कर जाता है and realization hits कि यार पढ़ना तो पड़ेगा अभी भी. So basically that joy of मतलब क्योंकि targets रहते हैं सबके, even for you guys. Going there is like the target. So you work hard once you reach over there, and then you are like, okay, first week is yes, it's a lot of fun, very proud of what I have done. Then after the first week, you're like, okay, everybody is an IITian over here. Now again, that competitive nature kicks in, saying, okay, now I have to be amongst the top over here. Is it the feeling that you guys have? It's even more competitive over there. Like in school, we were always the toppers. We have the feeling of always getting the first place. But when we go there, it's like someone else is taking my position. So we feel that in the starting phase. But then we get used to it that everyone here is a topper. Basically, the average performance of everyone is on the higher side. पहले हो सकता था स्कूल में, कॉलेज में, maybe the spectrum is wider. यहाँ पे क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऐसे नैरो होता जाता है क्योंकि everybody over there, they are amongst the best. Also, I think it's really true that while the spectrum shifts forward, in IIT, the papers, the exams that we get are also so much more difficult that वो जो spectrum narrow होके ऊपर आता है, वो फिर से broad हो जाता है. Someone still gets a 0. Someone still gets a 100. वहाँ पे भी जीरो मिलते हैं. हाँ. I thought स्कूल में ही होता है यार ऐसे. नहीं. No, वहाँ it happens. even it's more zeros in IIT than in schools. That's an insight. I Yeah, never knew definitely. And in fact, some people, get 30% and they're like so happy. अरे वाह, मुझे 30% मिल गया. It's like cricket, you may be playing at the topmost level and still you get out on the zero, at times, or you get hit for plenty of runs. I think it makes us realize that there's always someone smarter in the room. That's always the case. There's always someone who's slightly better, and you will never find someone who's on the top of that food chain and there's no one who's better than that. So now my follow-up question is, now that you have said that the cream comes to IIT, now the first week you meet everyone and now you make friends, of course, and now everyone over there is highly competitive and they've accomplished something. How do you deal with that aspect? So I think the first thing is that the realization कि we're no longer the best hits early. So जितनी जल्दी ये realization hit करती है, it's better for us because then there are two ways. या तो accept your fate कि अब मैं बीच में mediocre रहूँगा
या फिर you have to realize कि okay, something that the other people are doing is definitely like helping them to score better. So you talk to them, you understand कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं जो अलग है, जो मैं नहीं कर पाया अभी तक या जो I never really thought of. So either you implement that or you stay in the middle and be content with what you have. Initially तो you are just feeling how is this happening, you are figuring out कि हो क्या रहा है मेरे साथ, and it's not just in studies. People are even better in sports. I remember myself crying in my room that why can't I do this? But then initially you get used to it, you accept it, and then you try to improve yourself. कि yes, I can also do this. तो मैं भी करूँगी. अब I will start from now on. So that's the feeling. But also a lot of them start very early. Yes. So I may prepare for 2 years to get into IIT. There may be people who may be preparing for 4 years, 5 years, 6 years. Because there's no, like nobody can stop you from preparing in advance. Let's say when I play for India, I may start preparing once I get selected for the team. But there may be a scenario where I may be preparing for that moment for the last 5, 7 years. I'm just waiting for that break. And now once you get selected, now the playing field to a lot of extent becomes even. But now all of you start at a different level and from there you have to move forward. Habits also contribute a lot. The interesting thing was, you will try to learn their habits, implement and see whether it works for me or not. Or if there's a change that is needed for me to become as successful. माही सर, आपने फील्ड पे तो बहुत बार सर सिक्स मारे हैं, सेंचुरी मारी है, लेकिन कभी आपने अपने घर पे बैठे बैठे हाथ से कभी सेंचुरी मारी है क्या? करते कैसे हैं? I don't know. ओके, सो बेसिकली हम लोग खेलेंगे गेम हैंड क्रिकेट, राइट? ओके, तो खेलते कैसे हैं? हाँ, तो बेसिकली हम कुछ अपने हाथ से नंबर्स पॉइंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके. राइट. तो बेसिकली सर अगर हम दोनों साथ में खेल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम टॉस करेंगे. वंस मैं टॉस जीत गया तो लेट्स से आई कैन चूज बैटिंग या बॉलिंग. तो अगर मैंने बैटिंग चूज किया तो फिर आई विल बी द वन हु इज गोइंग टू बी स्कोरिंग. तो मैंने जो भी नंबर डाला सो दैट इज गोइंग टू बी जो मतलब काउंट होता है रन्स में. और अगर हम दोनों ने सेम नंबर डाल दिया तो मैं आउट. Out. या Okay. I can try this game. It seems easy, but very difficult to win. खेलना आसान है, but जीतना मुश्किल है. वेल इट्स लक बेस्ड. It's a lot of luck involved. Okay. ओके सर. आपने रूल समझ लिया? हाँ सर, क्योंकि रेफरी किसी को तो बनना पड़ेगा. जरूर जरूर. चलो Why ठीक है. not? So we'll do the toss first. You call. What do you want? इवन. Even. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? स्ट्रैटेजी बनाना भी नहीं आता ना मुझे. I've never played this game. चलो even है. 3, 2, 1, So the number is You won the 5. toss. Yes. 5. he So wins. I chose even. So Yes. sir won, right? Oh yes. अच्छा you? ऑड आया. सो सर आप जीत गए तो टॉस. आप Okay. जीते. तो बैटिंग पहले. आप चलो मैं बैटिंग या करता बॉलिंग हूँ. कुछ भी ले सकते मैं बैटिंग करूंगा. ओके. अच्छा ये बताओ जीरो पे आउट हो गया तो आप तो नहीं हो सकते जीरो पे आउट सर. क्यों? ये लक बेस है. एनीवेज चलो ट्राई करते हैं. ओके सर. So same 3, 2, 1 Yeah. and then the number. Okay. ओके. 3, 2, 1. So हो. 7 runs. no 3 runs. आप 3 ही मिलेगा. Yeah. 7 नहीं मिलेगा. No. चलो Okay. 3, 2, 1. Okay. 6. 9 runs. 3, 2, 1. So 12 runs. 8. Maths no 3. 12 runs. 3, 2, 1. 14 runs. 14. Okay. 3, 2, 1. Oh, out. Out. So the target is 15. Yeah. Okay. 3, 2, 1. I'm a better bowler. I'm a better bowler than batsman. Well, hence proved. Sir can do both, batting as well as bowling. I was Sir- very nervous. Sir Cricket is में an all-rounder. क्रिकेट में कम नर्वस होता है. इनफैक्ट इसमें ज्यादा नर्वस था. योगिता, Shayan. The thing is, tell me, how do you manage the expectation level? It happens to sports person also, cricketers also. In your case, you'll be talk of the town, talk of the mohalla, talk of where you live. कि उनका बेटा तो कितना अच्छा कर रहा है. या your parents. हमारा बच्चा तो कर ही ले. Now, these are external expectations. We all have expectation, our own expectation. But how do you deal with external expectation? Because that is not set by you. There are people other than you who are setting that expectation level. So how do you address that?
Right. So perhaps I think the best way to start for this answer is to look at you, sir, because obviously आप World Cup के लिए खेल रहे हैं. Entire India is cheering for you. So you are scoring under such immense pressure. अब हमारे लिए तो pressure is just मोहल्ला या okay. Definitely parents का pressure is sometimes significant. But at the end of the day, we have to realize कि parents की expectations are just for our own good. They are just hoping for the best for us, and we should take it in a positive manner. अबाउट एक्सपेक्टेशंस तो मैं कहना चाहूंगी एक्सपेक्टेशंस तो सबकी होती है बट योर एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम योर सेल्फ यू जस्ट हैव टू फुलफिल देम लाइक नॉट फुलफिल जस्ट ट्राई टू फुलफिल देम आई वुड से मेरे केस में तो ऐसा था मैं ऑनलाइन ही पढ़ रही थी तो ऐसे ऑनलाइन ही कंपटीशन होता था तो और ऐसे मेरे परिवार में किसी को पता ही नहीं है कि जेई क्या होता है आईआईटी क्या होता है सो इट वाज लाइक not like expectations in terms of JEE. My parents expected from me was clearing IAS. So that's another thing. But my parents never put a pressure on me about it. But my father wanted that I become an IAS. यूपीएससी की तैयारी Yeah. करके पास करके हाँ. मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर वो बने. तो अभी भी चाहते हैं बट फिर अभी तो मैंने उनको कन्विंस किया हुआ है कि यस आई कैन डू बेटर ही इज कन्विंस्ड नाउ शील डू व्हाटएवर शी वांट्स शील डू बेटर इन एवरी फील्ड ही इज कन्विंस्ड नाउ सो एक्सपेक्टेशंस तो होती है मतलब दुनिया की भी होती है खुद की भी होती है जस्ट यू कांट फुलफिल ऑल ऑफ देम बट जस्ट ट्राई टू रीच एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप खुद से सेटिस्फाइड हो It's very interesting because we also face the same. We are expected to win each and every game that we play. And the fact is we know we won't win each and every game. Anything that's a majority is good. So 10 में से अगर आप 5-6 गेम जीत रहे हो, it is good. Now the important thing is to win the ones that are really crucial. So हमारे ऊपर वो pressure आता है. So we try to avoid it, but you can't completely ignore it. So it's a nice thing. You guys also deal with it in a similar way. Right. So sir, when you are stressed about something, जब आपको किसी चीज को मतलब बहुत प्रेशर हो जाता है तो आप उसको कैसे अनवाइंड करते हैं लाइक डू यू हैव एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज लाइक योर गो टूज जो हम लोग पे अल्टीमेट प्रेशर रहता है सो मान लो अगर गेम फिनिशिंग के एंड में लास्ट ओवर की बैटिंग चल रही है लास्ट 2 ओवर है कितने रन चाहिए सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट आई डोंट वांट टू फोकस ऑन अगर हम इतने रन नहीं बना पाए तो क्या होगा वो तो जो भी होगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई लुक एट हु द बॉलर इज आई लुक एट हु माय पार्टनर इज आई लुक एट द फील्ड एंड देन I try to judge as to what the bowler will try and do. वो क्या करने की कोशिश करेगा वो क्या ब्लफ डिलीवरी डाल सकता है एंड आई नीड टू बी इन अ पोजिशन वेयर आई एम एक्सप्लोरिंग द फुल फील्ड जब आप प्रेजेंट में रहते हो ना तो वो एक जो रिजल्ट का प्रेशर होता है वो चला जाता है बिकॉज यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली यूर लुकिंग फॉर आंसर्स सो योर हार्ट रेट इज स्लाइटली डाउन रिजल्ट सोचने के बारे में जब हम लोग रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हार्ट रेट ऊपर जाता है क्योंकि थोड़ा अननोन है थोड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं है सो आई ऑलवेज थॉट बीइंग इन द प्रेजेंट रियली हेल्प्स इफ आई एम लुकिंग टू ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन थिंकिंग लाइक दिस हेल्प्स एंड ऑल्सो आई कैन कंट्रोल माई ब्रीदिंग टू टेम दैट हार्ट बीट सो फॉर मी दैट्स हाउ आई मेंटेन इट तो सर आपका डीआरएस में तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है बट प्रेशर में आके गलत डिसीजन लेना तो बहुत कॉमन चीज़ है तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि प्रेशर में आके आपने गलत डिसीजन लिया हो मतलब एग्जाम्पल कोई अगर आप देना चाहें तो देखो मैं अगर एग्जांपल दूंगा ना तो कई बार हुआ है कि नहीं यस हुआ है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कई प्लेयर्स होते हैं जो प्रेशर में बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं कई प्लेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो तो उतना अच्छे से उसको नहीं झेल पाते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है यू हैव टू ग्रूम देम अकॉर्डिंगली तो उसमें मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था जिसके कारण वी एंडेड लूजिंग द गेम बट अगर गलती की बात की जाए तो इंसान है हम सब गलतियां करते हैं ऑनेस्टली उस समय मुझे लगा था आफ्टर इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग कि इट वाज अ गुड डिसीजन बट इट डिडंट पे ऑफ दिस हैपेंस विद अस एज वेल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि डिसीजंस तो आपको लाइफ में लेते रहने पड़ेंगे कुछ डिसीजन सही होंगे कुछ सही नहीं होंगे बट क्यों सही नहीं हुए इज मोर इम्पोर्टेंट देन अरे सही नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ था अभी जेई एडवांस में हुआ था कि मेरा सेकंड शिफ्ट था मतलब 2 शिफ्ट में होता है तो इवनिंग वाले में मेरी 10 मिनट पहले स्क्रीन उड़ गई मतलब
like screen was gone and I am very much tense like what is going to happen. अब मैंने जो क्वेश्चन किया है क्या वो वापस आएंगे, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को पूरा दोबारा करना पड़ेगा. तो मतलब 5 मिनट ऐसे गए, फिर उसके बाद वो 5 मिनट मुझे मिले बट दैट डिडंट हैव मच इम्पैक्ट. व्हाट आई कुड डू इज like for the students preparing for exam, I would like to suggest them what you can do is take advantage of that extra time. That 5 minutes can be beneficial for you. Like तुम्हें क्वेश्चन पता है, तुम पढ़ चुके हो पेपर, तुम्हें क्वेश्चन पता है कि क्या है एग्जाम में, तुम उस टाइम पे बैठ के वो क्वेश्चन सोल्व करो. इतनी देर में वो आपका सिस्टम ठीक कर रहे हैं. सो दैट 5 minutes कैन बी टू मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि जब सिचुएशन खराब हो या खराब हो गई हो, उससे भी अच्छा ही तुम क्या निकाल सकते हो. सो इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस देयर इज सम पॉजिटिव. एंड अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रिपरेशन के दौरान आप दोनों ने ऐसी कोई गलती की हो जो आप कमिंग जनरेशंस को बोलना चाहें कि वो ना करे. इट कैन बी द सेम मिस्टेक, इट कैन बी डिफरेंट मिस्टेक्स, व्हाटएवर इट इज. मिस्टेक तो मतलब वो एक तो मेरा ये था कि मतलब मेरी खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर रही हूँ, सो आई वाज क्राइंग कि मैं क्यों इतना कर रही हूँ नेगेटिव मार्किंग. तो मतलब खुद से उतना एक्सपेक्ट भी मत करो कि यू गेट डाउनफॉल. लाइक मतलब मेरे को फिर ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं छोड़ने वाली थी वो सब. मतलब आप यू शुड कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग. Ups and downs are a part of it. There were some friends who were scoring better than me, so I was always competing with them that I have to score better than him, I have to score better than her. तो मतलब ऐसे होता था. फिर उस टेस्ट में मैं और ज्यादा कम लाती थी. तो मतलब वो था कि फिर उसके बाद अगली बार से मैंने सोचा ठीक है अब मैं खुद से compete करूंगी. तो फिर मतलब मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ. बट आपका पहले वाला भी डिसीजन सही था कि मैं इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगी, या लड़की हो या लड़का हो. बट द थिंग इज उसके बाद आपको वापस वहीं आना है, कैसे लाऊंगी. सो ठीक है, आपका टारगेट वो था कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स लाने हैं. देन यू कम बैक टू द प्रोसेस. अगर मैं ये सारी चीजें करूंगी तो मुझे उससे बेटर मार्क्स आएगा. कई बार हम क्या होते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं, नहीं इससे ज्यादा मार्क्स लाना है, इससे ज्यादा मार्क्स लाना है. तो फिर आप प्रोसेस डिफाइन नहीं कर पा रहे हो. आपने टारगेट तो बना लिया है, विच इज अ ग्रेट थिंग, आपने बाद में भी टारगेट बनाए, बट हाउ टू रीच दैट टारगेट is actually more important than the target. It was actually going in a negative way. हाँ. सो सर आप तो क्रिकेट के कैप्टन भी रह चुके हैं इंडियन टीम के. तो सर आपको पता होगा कि यू कांट जस्ट हैव ऑल द बेस्ट बैट्समैन लेट्स से, एंड पता चला कि उनको फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं एंड कोई बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे. सो द पॉइंट इज वी हैव टू मेक श्योर कि जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. तो अब मैंने क्या किया कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिजिक्स में अपनी पूरी मेहनत कर दी. और केमिस्ट्री में भी मुझे मतलब मोर और लेस अच्छा ही लगा, तो वो मैंने अच्छे से उसको टाइम दिया. बट जब मैं मैथ्स की बारी आई तो आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ डॉन्टेड बाय इट. इट वाज लाइक वेरी स्कैरी, वेरी डिफिकल्ट, सो आई गेव मैथ्स लेस टाइम. सो वी हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ हम लोग बराबर से करें एंड किसी को ऐसे छोड़ ना दें कि भूल जाएं कि अच्छा ये भी सब्जेक्ट है. नहीं, कई बार वैसा होता है कि आपको जिस चीज से आप डरते हो ना थोड़ा, तो आप उससे थोड़ा ज्यादा बैक ऑफ कर लेते हो. बट इन दिस केस whatever is my weakness, I want to address it slightly more. हर कोई लाइफ में हम सब टारगेट्स बनाते हैं. टारगेट के बाद आदमी क्या करता है, प्लान बनाता है. प्लान के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी कैन ऑलवेज डिबेट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं किया ना, हो सकता है प्लान सही हो लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो. So then also you have to figure out, whether it was the execution or the plan. कई बार हम execute नहीं कर पाते हैं और plan change कर लेते. So having that knowledge and intelligence to define. So it was very nice talking to both of you. It gave me a different perspective. For your future, all the very best. Keep sharing whatever you have gone through with aspirants, with people who want to be where you guys are right now. So all the very best from my side. Shayan? Thank you so much, sir. It was a real Just pleasure. one more round of hand cricket, please, sir. First, you have to admit I was the winner. Yes, sir. You won. Huh? Now we will play off camera, Okay, sir. so that you can't say now the series is equal, we are 1-1 and all. Okay, sir. Done? I agree.